Hello and welcome. Welcome to the fifth learning session of chapter number 1 of Science 2, which is heredity and evolution. So far in this chapter, these are all the topics that we have covered. We first looked at heredity, which is transfer of characters from one generation to the next generation. Then we looked at DNA and types of RNA. We saw the long process of protein synthesis, which had three important steps. The first step being transcription, then translation, and then finally translocation, right? Then we looked at theory of evolution. What is evolution? It's small gradual changes over a long period of time. That is known as evolution, right? So we saw how a theory of evolution says that first it was a living matter, and from that living matter became one unicellular organism. From that one unicellular organism, then we got multicellular organisms over 300 crore years. And then in the last learning session, we had looked at 6 evidences of evolution, right? In today's learning session, we're going to look at Darwin's theory of natural selection. We're going to see Lamarckism, and finally, we're going to look at speciation. Okay. The new word we're going to learn today is prolifically. Okay, prolifically. Our objective for today will be, first, students will be able to explain Darwin's theory of natural selection, Lamarckism, and speciation. All these three topics you should be able to explain by yourself. And finally, at the end, we are going to look at some end of chapter questions. So you should be able to recall, memorize all of those end of chapter question and answers that we will discuss today. Okay, so let us begin with Darwin's theory of natural selection. So the scientist's name is Charles Darwin. He had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon observations of those specimens, he published the theory of natural selection, which explains survival of the fittest, right? So Charles Darwin was a scientist and he had collected many specimens of plants and animals. बहुत अलग-अलग types के plants and animals को उसने कलेक्ट करके स्टडी किया था, और उनको ऑब्जर्व करके स्टडी करने के बाद उसने कौन सी थियरी पब्लिश की? ही पब्लिश द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. और वो क्या एक्सप्लेन करते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिट. जो सबसे फिट एनिमल या प्लांट होगा वो सर्वाइव करेगा और नेचुरल सिलेक्शन उसको सिलेक्ट करेगा. ओके. For this purpose, Darwin had published a book titled Origin of Species. So this book, even today, you get in the market, and so it was written long back, right? But even today, you get that in the market, and it is considered a very good book to be read. So I also, for a long time, I wanted to read this book, but till now I haven't found the time. But if y'all are interested in knowing more about this, it's considered a good book to read. Origin of Species by Charles Darwin. Okay. While explaining the concept, Darwin says that all organisms reproduce prolifically. What does prolifically mean? And before prolifically, what does reproduce mean? Reproduce means making new organisms, production of new organisms, right? So when you say reproduce prolifically, यानी इतना ज्यादा reproduce करते हैं जिससे जितना हो सके उतने ज्यादा नए organisms बन पाए. Okay, what does prolifically mean? इस ज्यादा से ज्यादा नए organisms बन पाए, ऐसे reproduce करते हैं. And this he is talking about all organisms, may it be plants, animals, any species. All organisms reproduce prolifically so that they get maximum number of new organisms reproduced. Okay. All organisms compete with each other in a life-threatening manner. Okay, सबका एक दूसरे के साथ competition होता है. एक प्लांट के दूसरे प्लांट के साथ competition कि किसको ज्यादा sunlight मिल रहा है. एक प्लांट और दूसरे प्लांट के बीच में competition कि किसके रूट्स काफी डीप होके उसको अच्छा पानी मिल रहा है. एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ कंपटीशन कि किसको ज्यादा पानी पीने मिलेगा. एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ कंपटीशन कि कौन किसको खा लेगा, राइट? तो सब लोग एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, कंपटीशन में है. और ऐसे कंपटीशन में जैसे कि इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग, जैसे कि अगर वो लोग कंपटीशन हार गए तो लोग मर जाएंगे, ऐसा कंपटीशन है नेचर में. ओके. इन दिस कंपटीशन ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सस्टेन यानी रह जाते हैं, सर्वाइव करते हैं. ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सस्टेन और सर्वाइव व्हिच शो मॉडिफिकेशंस एसेंशियल फॉर विनिंग द कंपटीशन. सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रह जाएंगे जो जिनमें अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे जिससे वो कंपटीशन जीत सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा प्लांट बनेगा जिसका हाइट बहुत फटाक से और बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है. अगर हाइट बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है तो बाकी के जो प्लांट्स है वो लोग नीचे रहेंगे. तो जिसका हाइट इंक्रीज हो गया उसको ज्यादा अच्छे से सनलाइट मिलेगा तो वो कॉम्पिटिशन जीत जाएगा, वो सर्वाइव करेगा, बाकी के सारे प्लांट जो है
वो लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, वो लोग हार जाएंगे एंड हेंस दे विल डाई आउट. ओके, अनदर एग्जांपल इज समझो देयर इज दिस वन एनिमल जिसका स्पीड बहुत इंक्रीज हो गया. ओके, एक मॉडिफिकेशन हो गया उनके बॉडी में जिसकी वजह से उनका स्पीड काफी इंक्रीज हो गया. So because of that increased speed, either they can attack other animals very easily or they can run from other animals very easily, right? So एक छोटे मॉडिफिकेशन है जिससे वो कंपटीशन हमेशा जीत सकते हैं, या तो दूसरे एनिमल को वो लोग खा सकते हैं या फिर दूसरे एनिमल से बहुत इजीली बच सकते हैं. तो वैसे एनिमल्स सरवाइव करेंगे, जीत जाएंगे और सरवाइव करेंगे, एंड बाकी एनिमल्स बच जाएंगे, सरवाइव नहीं करेंगे, कंपटीशन हार जाएंगे. ओके, so what does Darwin's theory of natural selection say further? However, besides this, इसके अलावा natural selection also plays important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. तो इसमें natural selection का भी काम है, क्योंकि natural selection का क्या काम है कि जो nature है वो ऐसे organisms को select करेंगे जो living which are very fit to live. ओके, जो जीने के लिए काफी फिट है, और बाकी सब पेरिश करेंगे यानी खत्म हो जाएंगे. ओके, सो नेचर ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा जो काफी फिट है, फिट फॉर लिविंग. ओके, और वो फिटनेस कहाँ से आएगा? अलग अलग मॉडिफिकेशन से. किसी का हाइट ज्यादा है, किसी के रूट्स बहुत डीप है, किसी का स्पीड बहुत फास्ट है, किसी का ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो दैट इज योर नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. Sustaining and selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific characters. Okay, sustaining यानी जो रह जाते हैं या फिर जो कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाते हैं. तो जो लोग रह जाते हैं, सर्वाइव करते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, दे परफॉर्म रिप्रोडक्शन. और वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तब उनका नया स्पीशीज बन जाता है. क्यों? क्योंकि उनमें मॉडिफिकेशन है, राइट. समझो किसी के रूट्स बहुत ही ज्यादा डीप हो गए. सो जब ऐसा प्लांट है जिसके रूट्स बहुत ज्यादा डीप हो गए, जिससे बहुत इजीली उनको पानी मिल रहा है, वो जब रिप्रोड्यूस करेगा और नए प्लांट्स खुद की तरह बनाएगा, एक नया स्पीशीज बन जाएगा. क्यों नया स्पीशीज बनेगा? क्योंकि वो मॉडिफिकेशन के साथ एक नया स्पीशीज बन रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, राइट. और वो जो नया स्पीशीज बनेगा उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होंगे, खुद के नए कैरेक्टर्स होंगे जो मॉडिफिकेशन से आया है. ओके, Darwin's theory of natural selection was widely accepted for a long duration. बहुत समय के लिए डार्विन का जो थियरी था नेचुरल सिलेक्शन का, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का, वो बहुत टाइम के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था. However, some objections were raised against the theory. कुछ तो प्रॉब्लम्स थे और उस प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन निकाला कि ये प्रॉब्लम्स है तुम्हारे थियरी में. ओके, so some of the main objections are given here. Three main objections are given. Natural selection is not the only factor responsible for evolution. Evolution में सिर्फ natural selection काम नहीं करता, दूसरे भी factors होते हैं. Next, Darwin did not mention any explanation about useful and useless modifications. कौन से modifications useful होंगे, कौन से modifications useless होंगे, इसके बारे में कोई explanation नहीं है. There is no explanation about slow changes and abrupt changes. कौन से changes slow होंगे, कौन से changes fast होंगे, और उसके बारे में क्या explanation है, ऐसा क्यों होता है. It was absent from his theory. Okay, but irrespective of all this objection, ये सब objections होने के बावजूद Darwin's work on evolution has been a milestone. काफी important काम माना जाता है evolution में डार्विन का जो कुछ भी theory था वो. Okay, and बहुत ही important contribution to science माना जाता है Darwin's theory of natural selection. So that was Darwin's theory of natural selection. Next, we are moving on to Lamarckism. Okay, Lamarckism is an alternative. एक theory है डार्विन का, दूसरा theory है Lamarckism. Okay, both of them are trying to explain evolution. So Jean Baptiste Lamarck, ये scientist का नाम है, Jean Baptiste Lamarck. So he proposed that morphological changes, morphological any structure, we saw the meaning of the word morphology in our last learning session, right? Morphology any structure, shape, form. So morphological changes any structure में जो changes है occurring in living organisms are responsible for evolution, and the reason behind, okay, before that, so कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, शेप में, फॉर्म में जो चेंज आता है, उसके वजह से एवोल्यूशन होता है, अकॉर्डिंग टू जीन बैप्टिस्ट लामार्क. ओके, एंड द रीजन बिहाइंड दिस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं? सबसे पहली बात तो लामार्क क्या बोल रहे हैं कि
एवोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और वो स्ट्रक्चर में चेंज क्यों आ रहा है वो बोल रहे हैं दो चीजों की वजह से हो सकता है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. इन दो चीजों की वजह से. ओके, एंड वी लुक एट एग्जांपल्स. इसके क्या एग्जांपल्स है हम देखेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स. He called this concept as principle of use or disuse of organs. Okay, ये concept को उसने क्या नाम दिया? Use of organs और disuse of organ. जो organs ज्यादा use हो रहे हैं वो modify हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे. Okay, जो organs use नहीं हो रहे हैं वो खराब हो जाएंगे, degenerate हो जाएंगे, useless हो जाएंगे और निकल भी जाएंगे. Okay, ये उसका principle है Lamarckism का. So now let us come to examples. Okay. Further, he said that neck of giraffe has become too long due to browsing on leaves of tall plants by extending their neck for several generations. So क्या बोल रहे हैं, ये जो neck of giraffe है वो बहुत लंबा होता है, राइट? तो उसका थियरी क्या लामार्किज्म का, ये लंबा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिराफ्स ने जो टॉल प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनको खाने के लिए अपना जो नेक है वो स्ट्रेच किया. ओके, क्योंकि ऊपर के लीव्स खाने इसलिए उसने अपना नेक स्ट्रेच किया, और जितना नेक स्ट्रेच किया उतना ज्यादा वो ऑर्गन या फिर उतना ज्यादा वो बॉडी पार्ट यूज होने लग गया, और जितना ज्यादा यूज कर रहे थे जिराफ्स अपने नेक को उतना ज्यादा ही वो एक्सटेंड हो रहा था धीरे धीरे, और धीरे धीरे एक्सटेंड होकर फिर वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया. ओके, यहाँ पे ब्राउजिंग लिखा है. ब्राउजिंग यानी बस देखना, चू करना, खाना. ओके, सो जनरली ब्राउजिंग दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग. सो अगर तुम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो उसको ब्राउजिंग बोलते हैं. बस देख रहे हो तुम क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. So browsing of leaves here in the case of giraffe, they will just check out different leaves available and they eat it, right? So Lamarckism का थियरी क्या है? क्योंकि वो नेक को बार बार यूज कर रहा था स्ट्रेच करने के लिए, इसलिए धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ने लग गया, नेक लंबा हो गया. आफ्टर सेवरल जनरेशन, सारे जिराफ अपना नेक एक्सटेंड कर रहे थे, तो बहुत सारे जनरेशन के बाद उनका नेक काफी लंबा हो गया. सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ यानी जो लोखंड का काम करते हैं. ओके, सो जो लोखंड का काम करते हैं उनके शोल्डर्स दे हैव बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग. जो लोग लोहे का काम करते हैं उस लोहे को पहले गर्म करते हैं और फिर उस पर हैमर मारते हैं, राइट? क्योंकि उनको बार बार हैमर मारना पड़ता है, उनके शोल्डर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो क्योंकि बहुत बार शोल्डर्स यूज हो रहे हैं इसलिए वो स्ट्रांग हो गए आयरन स्मिथ के शोल्डर्स, राइट? So let me connect this to our previous slide. Previous slide में क्या बोला था कि जो morphological changes है they happen because of activities. For example, iron में जब बार बार iron को hammer करता है, या फिर laziness. Laziness के examples also we'll see in our upcoming slides. Okay, so here one example was for giraffe, another example was for iron smith. चलो लोखंड का काम करते हैं. Few more examples. Wings of birds like ostrich and emu have become weak due to no use. So this is an picture of ostrich. Okay, so ostrich, emu ये बहुत बड़े birds होते हैं. They are almost humans height. Okay, तो उनके they obviously cannot fly, right? So one of the reasons they cannot fly is उनका वजन बहुत ज्यादा होता है. The another reason they cannot fly is कि उनके wings देखो बहुत छोटे हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इनके wings, काफी वीक विंग्स है. तो लमार्किज्म के थियरी के हिसाब से वो विंग्स जो है इन बर्ड्स के वीक क्यों हुए हैं? क्योंकि वो लोग बहुत टाइम के लिए यूज नहीं कर रहे थे. बिकॉज दिस बर्ड्स ऑस्ट्रिच एंड ईमू बहुत टाइम के लिए अपने विंग्स यूज नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारे जनरेशन में वो विंग्स जो है वो वीक होने लग गए और फिर वो लोग चलने लग गए. Another example, so this is an example of laziness कि ऑस्ट्रिच एंड ईमू लेजी थे इसलिए उन्होंने अपना विंग्स यूज करना बंद कर दिया, इसलिए वो वीक हो गए. Legs of birds like swan and duck have become useful for swimming due to living in water. कुछ birds थे swan जैसे and duck जैसे, you can see a swan over here. वो लोग हमेशा पानी में रहते थे. क्योंकि वो लोग हमेशा पानी में रहते थे, उनके जो legs है they have become useful for swimming के लिए उनके legs काफी यूजफुल बन गया क्योंकि वो लोग हमेशा पानी में रहते थे. Snakes have lost their legs by modification in their body for burrowing habit. स्नेक्स क्या थे? स्नेक्स को पहले पैर थे, बट स्नेक्स हमेशा खड्डा खोद के जमीन के अंदर चले जाते थे. तो क्योंकि वो लोग बार बार खड्डा खोद के जमीन के अंदर जा रहे थे, उनके लेग्स गायब हो गए, वो लोग अपने पैर को ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे. से लमार्किज्म का थियरी, या तो कोई ऑर्गन बार बार किसी स्पेशल वे में यूज हो रहा है इसलिए वो चेंज हो जाता है, या फिर कोई स्पेशल ऑर्गन यूज ही नहीं हो रहा है इसलिए वो डीजेनरेट हो जाता है, गायब हो जाता है, वीक हो जाता है. दैट्स लमार्किज्म्स थियरी. Development of organs due to specific activities
और द डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड। तो ये जो थियरी था लामार्किज्म का कि कुछ ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत स्पेशल वे में उसको यूज करते हैं, स्पेशल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, या फिर कुछ ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं क्योंकि उनको यूज ही नहीं किया बहुत टाइम के लिए। तो बहुत टाइम के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था, बट ट्रांसफर ऑफ दोस कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड। कि अगर ऐसे स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस आ गए किसी एनिमल में और ऑर्गेनिज्म में, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होगा उसके लिए अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं था। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई आयन स्मिथ है, आयन स्मिथ के शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं बिकॉज हमेशा वो हथौड़ा मार रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, उसके जो बच्चे होंगे उसके भी शोल्डर स्ट्रांग होंगे, ऐसा नेसेसरी नहीं है, राइट। वीक शोल्डर्स वाले बच्चे भी पैदा हो सकते हैं आयन स्मिथ के। सो इसकी वजह से उस थियरी को रिजेक्ट कर दिया था कि वो अगले जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होगा, ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये थियरी। Because it had been verified many times that modifications brought in us are not transferred to next generation, and thereby Lamarck's theory was disproved। अगर हमें कोई मॉडिफिकेशन आ गया हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, इसके लिए प्रूफ था, इसलिए लमार्क का जो थियरी था उसको डिस्प्रूव करना पड़ा हमें। The living organism can transfer the characters which it has acquired to the next generation. This is called as ancestry of acquired characters। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अगेन इट्स ऑफ टॉपिक, ये जो लास्ट पॉइंट है, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। So that was Lamarckism, and let's move on to the third topic for the day, and this is the last topic for the day, and then we have a few end of chapter questions, which is speciation। Okay, speciation। So formation of new species of plants and animals is the effect of evolution। नए species कैसे बनते हैं? There are so many different species of plants, there are so many different species of animals on earth today, right? तो इतने अलग अलग species कैसे बने? वो अलग अलग species, नए नए species evolution की वजह से बने। Okay, again let me remind you what is evolution। small changes over a long period of time is known as evolution। ठीक है। Species is the group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction। Species का definition, so you'll need to remember definition of species again for objective type of question। what are species? एक group of organisms होते हैं species जो लोग fertile individuals produce कर सकते हैं। fertile यानी जो लोग खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया बट वो अभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऐसा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे जो खुद भी वापस रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसका मतलब है फर्टाइल, कि इट कैन आल्सो रिप्रोड्यूस। सो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। ओके, कोई ऐसा स्पेशल प्रोसेस नहीं होना चाहिए, नेचुरल रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन होता है उससे वो रिप्रोड्यूस करने उसको आना चाहिए, उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। Each species grows into specific geographic conditions। कोई specific environment होना चाहिए जिसमें एक नया species, कोई भी एक species grow होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वार्म क्लाइमेट में एक अलग species होंगे, कोल्ड क्लाइमेट में अलग species होंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन्स होते हैं वहां पे एक अलग species होगा, जहाँ पे बहुत ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वहां पे अलग species होंगे। तो कौन से जोग्राफिकल कंडीशन है, ड्राई है, वेट है, कोल्ड है, हॉट है, उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के स्पीशीज वहां पे आएंगे। ओके, दे आर फूड, खाना, हैबिटेट, उनका एनवायरनमेंट एंड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, वो लोग कैसे और कितना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सब का ये सब अलग होता है अलग अलग स्पीशीज के लिए। However, genetic variation is responsible for formation of new species from earlier one। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उसमें से कोई नया स्पीशीज बनना चाहिए, उसके लिए जेनेटिक वेरिएशन रिस्पॉन्सिबल। जेनेटिक यानी जीन्स में वेरिएशन यानी चेंज होना। सो जीन्स में जब तक चेंज नहीं होता तब तक न्यू स्पीशीज नहीं बनेंगे। ओके, बिसाइड्स ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। अगर उनका ज्योग्राफिकल एरिया एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो फिर उनका रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है वो थोड़ा चेंज हो गया, उससे भी नए स्पीशीज बन सकते हैं। एंड सिमिलरली ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आल्सो लीड्स टू स्पीसीएशन। के अगर समझो एक ज्योग्राफिकल एरिया में सिर्फ एक टाइप के स्पीशीज है और बाकी पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है, आइसोलेटेड है मतलब अलग है एकदम। ओके, उससे भी नए स्पीशीज बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, इफ यू लुक एट
द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया वो काफी अलग होते हैं बाकी के वर्ल्ड से, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एकदम साउथ में एक अलग सा कॉन्टिनेंट है, तो अलग हो गया, वो पूरे वर्ल्ड से अलग हो गया, इसलिए वहां पे जो स्पीशीज मिलेंगे वो बहुत अलग मिलेंगे, वेरी डिफरेंट स्पीशीज। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल आइसोलेशन, क्योंकि वो एकदम अलग है, कॉन्टिनेंट पूरे दुनिया से हट के है। एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी पूरे बाकी के जो ऑर्गेनिज्म थे उसके साथ वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ एक सेट एनिमल्स या फिर स्पीशीज के सेट से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके वजह से भी नए स्पीशीज बन सकते हैं। व्हाट इज स्पीसीएशन? स्पीसीएशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ओके, सो यहाँ पे भी स्पीशीएशन वर्ड यूज किया है, तो लीड्स टू स्पीशीएशन यानी नए स्पीशीज फॉर्म हो सकते हैं। So that was speciation. Now we can begin with end of chapter questions. First, we'll look at 3 short notes. So the question is, write short notes based upon the information known to you. First is embryology, second is evolution, and third is connecting link. All these 3 topics we have seen in our last learning session, and now we're going to use that knowledge of our last learning session to write good quality answers for end of chapter questions. Okay, so the first question is embryology. Uske upar short notes. Short notes generally will come for 2 marks, and you are expected to write at least 4 points for a short note. Okay, 5 points, 6 points likha to bhi chalega, at least 4 to hone chahiye अच्छे points. Okay, let us begin with embryology. So first we'll have to explain embryology kya hota hai, right? So the first point is definition of embryology. So embryology is a branch of biology that deals with the study of different stages of development of embryo. What is embryo? Let me remind you, let me revise that. When male gamete and female gamete combine, they become zygote. Zygote से फिर embryo बनता है, embryo से फिर नया organism बनता है. तो इसके जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के एम्ब्रियो के, स्टार्टिंग से एम्ब्रियो जब बनता है उससे लेकर जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसके बीच में जो कुछ भी स्टेजेस है उनको जो स्टडी करता है, उस बायोलॉजी के ब्रांच को एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं. It enables us to comparatively study the development stages of various animals. एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं कि अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियोस के स्टेजेस में क्या क्या सिमिलरिटी है. ओके, हमने वो एक पिक्चर देखा था, राइट, जहां पे अलग अलग वर्टिब्रेट्स रखे थे और उनके फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, सेकंड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, थर्ड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो दिखा था, जिसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सबका सेम लगता है, एंड फिर बाद में थर्ड स्टेज में सब अलग अलग दिखना शुरू हो जाते हैं. तो कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल होता है एम्ब्रियोलॉजी में. Embryos of different vertebrates appear similar during the initial stages, indicating common origin of these animals. So बहुत सारे ऐसे vertebrates, what is vertebrate? जिसमें vertebral column होता है. So ऐसे बहुत सारे vertebrates, उनका जो एम्ब्रियो का फर्स्ट स्टेज होता है वो सब एनिमल्स का फर्स्ट स्टेज एकदम सेम दिखता है, सिमिलर दिखता है. इसका मतलब क्या होगा? दे मस्ट बी कमिंग फ्रॉम कॉमन ओरिजिन, राइट. उनका कोई सेम ओरिजिन होगा, सेम जगह से, सेम एनिमल से, सेम स्पीशीज से अलग अलग एनिमल्स फॉर्म हुए, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट, similarities decrease gradually as the embryos develop into an increase in complexity. Sorry, I did not read that correctly. I'm going to read that sentence again. Similarities decrease gradually as the embryos develop due to an increase in complexity from differentiation of cells into specialized tissues to form specific organisms. So starting के stage में सारे embryos अलग अलग animals के similar लगते हैं, बट धीरे धीरे वो लोग उनका जो सिमिलरिटी कम होते जाते हैं, धीरे धीरे वो लोग अलग अलग लगने लगते हैं. वो क्यों लगने लगते हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होता है. ओके, पहले सब कुछ सिंपल है, राइट, एक ही टाइप का सेल है, एक ही टाइप का टिश्यू है, बट धीरे धीरे अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, तब वो अलग अलग दिखना शुरू हो जाते हैं, राइट. So differentiation, this word we had looked at in our last learning session, right? In biotechnology, what is differentiation? स्टेम सेल्स में से अलग अलग टाइप के सेल्स बनना, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं. तो उसके बाद सारे के सारे एम्ब्रियोस फिर अलग अलग दिखना शुरू हो जाते हैं. सो दैट्स योर शॉर्ट नोट ऑन एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट, एवोल्यूशन. सो अगेन फर्स्ट पॉइंट हैज टू बी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द शॉर्ट नोट इज अबाउट. सो व्हाट इज एवोल्यूशन? Evolution is defined as gradual changes occurring in living organisms over a long duration. छोटे छोटे changes जो living organisms में होते हैं, बट एक लंबे समय के ऊपर. ओके, It is a slow going process, काफी slow process है, through which development of organisms is achieved. ये slow process से बहुत सारे organisms develop होते हैं. Evolution is thus the formation of new species due to changes in specific characters of organisms. Specific characters जो होते हैं organisms में वो change होते रहते हैं और उससे बहुत सारे changes आने के बाद
एक नया स्पीशीज बन जाता है। सो एवोल्यूशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज है। लास्ट पॉइंट, changes in this specific changes in these specific characters get accumulated over several generations। जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं वो एकदम जमा हो जाते हैं। एक्यूमुलेट होना ही नहीं, जमा हो जाना बहुत सारे जनरेशन के बाद, सेवरल जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन के बाद वो जो चेंजेस है वो जमा हो जाते हैं। दे कम टुगेदर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। कौन से कैरेक्टर्स चेंज होंगे, कौन से कैरेक्टर्स अक्यूमुलेट होंगी, कौन से कैरेक्टर्स उतना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखेंगे, वो कैसे सिलेक्ट होगा? नेचुरल सिलेक्शन से। एंड वी हैव लुक्ड एट व्हाट इज द नेचुरल सिलेक्शन टुडे, राइट? जो सर्वाइव करेगा, जो फिटेस्ट एनिमल बनेगा, फिटेस्ट प्लांट बनेगा, वो सर्वाइव करेंगे। सो दैट्स नेचुरल सिलेक्शन। उसके हिसाब से बहुत सारे कैरेक्टर्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे बहुत सारे जनरेशंस के बाद। सो दैट्स योर short note on evolution. Next, connecting link. Connecting link again we had looked at in our last learning session, right? So first, explain what is connecting links. So connecting links are some plants and plants or animals that show morphological characters by which they can be related to two different groups of organisms. Okay, कुछ ऐसे plants और animals होंगे जिनके morphological characters, morphology यानी structure, form, shape. सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनका शेप होगा, जो फॉर्म होगा, वो ऐसे होंगे कि उनको दो अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके, ऐसा लगता है कि अच्छा ये इस ग्रुप में भी हो सकता है, उस ग्रुप में भी हो सकता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। पेरिपैटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स, एनेलिडा एंड एंथ्रोपोडा। सो पेरिपैटस के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एनेलिडा में भी अप्लाई होते हैं और आर्थ्रोपोडा में भी अप्लाई होते हैं। एनेलिडा क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है, दिस वी हैव सीन इन डिटेल इन आवर चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। उसमें हमने डिटेल में देखा था कि एनेलिडा क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, राइट? सो इट शोज एनेलिड लाइक कैरेक्टर्स। एनेलिडा ग्रुप के कौन से कैरेक्टर्स दिखाता है? पेरिपैटस सेगमेंटेड बॉडी, छोटे छोटे टुकड़ों में बॉडी होगा, थिन क्यूटिकल, एकदम पतला कवरिंग होगा, पैरापोडिया जैसे ऑर्गन्स होंगे। ये सब किसके qualities है? Annelida के। okay, but at the same time it shows arthropod like characters such as tracheal respiration, right? trachea मतलब ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप से जो रेस्पिरेशन होता है उसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम उनका ओपन है, तो ये किसके जैसे है? आर्थ्रोपोडा जैसे है। सो एनेलिडा जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आर्थ्रोपोडा जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इन दोनों के बीच में पेरिपैटस एक कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, डक बिल्ड प्लैटिपस। Duck-billed platypus is a connecting link between mammals and reptiles. Mammals के ग्रुप में क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि mammals की तरह इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है एंड हेयर्स है। मेमोरी ग्लैंड्स यानी जिस ग्लैंड्स की वजह से हम मिल्क बना पाते हैं। ओके, जो कोई भी मैमल मिल्क बना पाता है वो किसकी वजह से बना पाता है? मेमोरी ग्लैंड्स की वजह से। एंड हेयर होता है, राइट? तो ये मैमल जैसा बिहेव कर रहा है, बट इट लेज एग्स, और एग्स कौन ले करता है? रेप्टाइल्स एग्स ले करते हैं। तो सेम, सो दोनों मैमल्स और रेप्टाइल जैसा बिहेव कर रहा है, सो दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। लास्ट एग्जांपल ऑफ कनेक्टिंग लिंक, लंग फिशेस। सो लंग फिशेस आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन फिशेस एंड एम्फिबियंस। फिशेस क्यों? बिकॉज इट्स अ फिश, इट लिव्स इन वाटर। एम्फिबियंस क्यों? बिकॉज इट परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विद लंग्स। रेस्पिरेशन विद लंग्स कौन परफॉर्म करता है? एम्फिबियंस। तो फिश जैसा भी है, एम्फिबियंस जैसा भी है, तो फिश एंड एम्फिबियन के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। सो दैट्स अ शॉर्ट नोट ऑन कनेक्टिंग लिंक। Next, define vestigial organs. Write names of some vestigial organs in human body and write names of those animals in whom same organs are functional. Vestigial organs का definition लिखो, humans के vestigial organs बताओ, और वो same vestigial organs दूसरे कौन से animals में useful है, functional है, उन्हें बताना। Okay, so here's the answer. पहले definition of vestigial organs. Okay, what are vestigial organs? They are degenerated यानी खराब हुए, अंडर डेवलप, ठीक से डेवलप नहीं हुए, या फिर यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ओके, जिनका कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है उस बॉडी में। सो सम वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस दैट आर फंक्शनल इन अदर एनिमल्स आर एज फॉलो। पहला अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में एक छोटा सा पार्ट होता है। इट इज फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ओके, हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, बट रूमिनेंट्स जो प्लांट बेस्ड चीजें खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, उनमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स यूजफुल होता है, बट ह्यूमंस में उसका कोई यूज नहीं है। मसल ऑफ ईयर पिना।
सो इट इज दिस, ओके। हमारे कानों में जो मसल्स है उसको मसल्स ऑफ ईयर पिना बोल रहा है। It is useful in monkeys and other animals like rabbits, cows, horses, etc. for movement of ear pinna. ये जो पार्ट है इसको अगर मूव करना होगा तो बाकी एनिमल्स यूज करते हैं, बट हम इसको मूव नहीं करते, राइट। सो हमारे में यूजलेस है, बट बाकी एनिमल्स में यूजफुल है। लास्ट, अदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स इंक्लूड टेलबोन, कॉकिक्स एंड टेलबोन, कॉकिक्स, बॉडी हेयर एंड विजडम टूथ। ये अगेन वी हैव सीन दिस इन डिटेल, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वन मोर टाइम। सो दैट्स योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। Next question. Explain with suitable examples importance of anatomical evidences in evolution. Anatomical यानी structure of body is known as anatomy. Okay, body का जो structure है उसको हम anatomy बोलते हैं। तो anatomical evidence क्या है, anatomy में क्या proof है evolution का, हमें examples के साथ explain करना है। Okay, so here's the answer. First, एनाटॉमिकल एविडेंस होते क्या उसको एक्सप्लेन कर दो फर्स्ट पॉइंट में। सो एनाटॉमिकल एविडेंसेस आर सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर्स एंड एनाटॉमी बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स काफी सिमिलर लगते हैं, उसको हम एनाटॉमिकल एविडेंस बोलते हैं। सो एग्जांपल ये हमने देखा था, राइट। हैंड ऑफ ह्यूमन, फोर लेग ऑफ ऑक्स, ऑक्स का जो आगे का पैर होता है, फ्लिपर ऑफ वेल, वेल के साइड में जो होता है, फोर लिम्स ऑफ बैट, बैट के जो आगे के हाथ होते हैं या फिर विंग जो होता है, they appear different superficially, ऊपर superficially यानी ऊपर से अलग लगते हैं, या फिर morphologically उनका स्ट्रक्चर काफी अलग दिखता है। Also the function of these structures is different in different animals, right? Humans के हाथ बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं, खाना खाना, फार्मिंग करना, कुछ उठाना, फोर लेग ऑफ ऑक्स चलने के लिए, खड़े होने के लिए, फ्लिपर ऑफ व्हेल स्विमिंग करने के लिए, फोर लिम्स ऑफ बैट उड़ने के लिए। सबका फंक्शन भी अलग अलग है अलग अलग एनिमल्स में। However, there is similarity in structure of bones and bony joints in the organs of these animals. ये सारे के सारे ऊपर से अलग लग रहे हैं, उनका फंक्शन भी अलग है, बट उनका जो बोन का स्ट्रक्चर है और बोन के जो जॉइंट्स है वो काफी सिमिलर है। ओके, These similarities indicate that the animals evolved from common ancestors, thus providing proof of evolution. क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है, इससे हम बोल सकते हैं कि उनका कोई तो कॉमन एंसेस्टर था, बहुत जनरेशन पहले उनका कोई कॉमन पेरेंट था, कॉमन एंसेस्टर था, और उन कॉमन एंसेस्टर में से सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स इवॉल्व हुए, ये हम बोल सकते हैं, और ये एवोल्यूशन को प्रूव कर सकता है। And that's your answer to that question. So that is it for this learning session. Just check whether you've accomplished today's learning objectives. First, can you explain me Darwin's theory of natural selection? Can you explain me Lamarckism? Can you explain me speciation? If the answer is yes, then you have achieved today's first learning session. Can you recall? तुम याद करके मुझे आंसर बता सकते हो क्या for all the different end of chapter questions that we discussed today? Again, if the answer is yes, then you have achieved today's second learning objective. Okay, and you might have noticed that there are many end of chapter questions in this chapter. Okay, so बहुत कुछ memorize और by heart करने जैसा है इस chapter में, which also means more chances of some question coming from this chapter in our board exam. So it's an important chapter from board exams point of view. Okay, so make sure you're by hearting, memorizing all the end of chapter questions now itself, जब एक एक learning session तुम कंप्लीट कर रहे हो। एग्जाम के जस्ट 5 दिन पहले 10 दिन पहले अगर तुम सब कुछ एक साथ बाय हार्ट करने जाओगे मुश्किल हो जाएगा। सो मेक श्योर यू आर बाय हार्टिंग all the end of chapter questions on the same day when you are completing that learning session. Okay, so that is it for this learning session. This is the new word we learned today, prolifically. So क्या sentence था? That all organisms reproduce prolifically यानी in a way that produces many organisms. जितने ज्यादा organisms produce होंगे उस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, सो दैट इज इट। आई होप यू understood everything, and we'll see each other in the next learning session. Till then, bye and